I'm from Miram village, and I did my MBBS from Kerala. Right now, I'm pursuing for combined civil service examination. There is CSE. Last year I reached the interview level, and this year I have written my mains this September, and I'm waiting for the result. And regarding the preparations, I think the most important thing is that we have to focus on the foundation, that is NCERT textbook of especially class 11 and 12. And regarding mains, the most important thing is focusing on previous year questions and giving due importance to the optional subjects. Right now, actually, the result of the mains has not been declared yet, so I'm waiting for it. I hope it will be declared on first or second week of December. So I'm keeping my finger crossed. Let's hope for the best. The advice for the youngster is that we have to, if you want to give this exam, then you have to give your 100% to it. You cannot give 70 or 90% to this exam, because this exam is very competitive. So you have to give your 100% to this. And the thing is that we should, if possible, we should start early. If you see the people from mainland India, they start this journey from the college time onwards. I mean, especially people from Delhi regions, they will join the college, and from first year itself they will start this exam preparation. So I think the most important thing for this exam is you should have a good guidance for this exam, because the syllabus is very vast. So you should need clear guidance for this. And the second thing is that you should have a very good mindset for this exam, because this exam will very unpredictable, and so you should always have that mental strength to go through this process. To Earing sir gave me an amount of 1 lakh further for my assistance, and after that last year I reached the interview level. There too he gave me a sum of 2 lakhs. He promised me a sum of 2 lakhs, and this today, that is 26th of November, there was he has conducted a small program in which he has ADC office. at the ADC office Ruksin, he has given me the sum of 2 lakhs rupees that he promised last year. सर, जो जिंग मास्टर आज जो आप लोग पहले शीटेड किए उनको, आप उनका बारे में क्या बोलना चाहेगा? हमारा यहाँ 37 में हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ के बच्चों को कोई प्रेरणा का रूप में या उनको एक सहायता का रूप में हम लोग उनको चाहे यूपीएससी हो, एपीएससी हो, एसएसबी हो, सब में हम लोग उनको कोचिंग देते हैं। तो हमारा पहले से मेरा मकसद था कि यहाँ यातायात का जो लोगों को सुविधा देना है, तो इसलिए यहाँ का जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ प्रायोरिटी। सेकंड होता है हमारा स्वास्थ्य और हमारा एजुकेशन। 3 नंबर में हम एजुकेशन को लेते हैं। यहाँ के जितने भी बच्चे स्कूल्स वगैरह में भी हम लोग कोशिश करते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, लेकिन साथ साथ हम लोग एसएसबी हो, एपीएसएसबी हो या एपीएससी हो या आईएएस के जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग उनको बच्चों को हम लोग उत्साहित बनाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और उनको हम कोशिश करते हैं को हमारा ओर से हम लोग उनको थोड़ा सा धनराशि दे के उनको अपना जो ज़िंदगी का सफ़र में वो सफल हो सके हम लोग कोशिश करते हैं। जिंग मास्टर भी उन बच्चों में से 5 बच्चों में से जो प्रीलिम्स के लिए हम लोग उनको मदद किए थे। उसके बाद जब वो प्रीलिम्स पास किए थे उनको हम लोग 1 लाख का राशि दिया था, और आज उनको हम लोग इसलिए 2 लाख की राशि दे रहे हैं कि हमारा वही मकसद था। पिछले बार बिकॉज चुनाव के कारण या कुछ अन्य कारणों से वो उनको हम लोग वो राशि नहीं दे पाया, तो इस बार हमने देखा है कि वो शायद पिछले बार के से अच्छा करेगा, तो उसको हम लोग 2 लाख का राशि इसलिए उसको हम लोग सहायता करते, मदद करते ताकि वो किताब खरीदें, जर्नल्स खरीदें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनका अपना जो डेवलपमेंट के लिए वो उनका एक बहुत बड़ा सहायता होगा। इसलिए उनको हम लोग, इट इज़ नॉट ओनली फॉर हिम बट एवरीवन, जो भी हमारा 37 से जो आईएएस का कोचिंग है उसमें हम लोग 1 लाख देंगे,
जो भी प्रीलिम्स पास करेंगे उनको अनदर 1 लाख देंगे, और अगर वो मेंस को पास करते हैं उनको हम लोग 2 लाख का राशि देते हैं। टोटल 4 लाख उनको मिलता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ जिंग सर नहीं, वो तो एक हमारा भविष्य, युवा पीढ़ी का वो एक भविष्य है, और वो एक मार्गदर्शक हो गया है हमारा यहाँ। आई थिंक 37 में हमारा जो जिस प्रकार से उनको हम लोग उनको कोचिंग का ये सुविधा दिया, और उसके बाद एग्ज़ाम्स में सुविधा दिया, तो अन्य बच्चे भी ये 4 लाख का राशि को वो लोग प्राप्त कर सकें। हम तो पूरा भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं उनके लिए, उनको बधाई भी देता हूँ कि हमारा 37 को रिप्रेजेंट करेंगे, और भविष्य में भी ऐसे तो हमारा यहाँ APSC में बहुत मिले थे पिछले बार भी, इस बार भी मिलेगा कि हम लोग कोचिंग करा रहे हैं उनका। एंड जिंग के लिए मेरा ऑल गुड विशेस, ऑल माय ब्लेसिंग्स आर विद हिम, एंड वी होप दैट ही कम्स थ्रू दिस टाइम एंड रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली 37 but East Siang, and not only East Siang or Siang, but not only our Adi community, but also हमारे जितने भी यहाँ अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हिम। तो यही मैं इसलिए हम ये छोटा सा कार्यक्रम था, और आप सबको भी आपका माध्यम से इसका एक मैसेज जाएगी कि अन्य इलाकों में भी ऐसा कोई योजनाएं शुरू करें। ये मेरा आप सबको प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू।